I am SSP Maria Taimur with almost 14 years into service. Like I mentioned yesterday, I was the first female officer to join police service as a commissioned officer. In these 14 years, I've had the opportunity to serve in 7 different police organizations. जिस तरह से it might be in your knowledge कि हमारी different police organizations हैं, उसमें provincial formations भी हैं, federal government formations भी हैं. So I have served with Islamabad Police, then I have served with Frontier Constabulary, I have served with Gilgit-Baltistan Police, I have served with National Highways and Motorways Police, I have served with Punjab Police. Mostly my tenure has been more than 6 years with Punjab Police in different capacities. And then I have now shifted to National Police Academy as an instructor for the last 2 years now. The reason why I'm giving you this background is कि जब आप जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का आप एक्सपोजर लेते हैं तो आपको वर्किंग डायनामिक्स जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ सिमिलैरिटीज रहती हैं बिकॉज दे आर पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस बट उनके फंक्शंस डिपेंडिंग ऑन उनका मैंडेट क्या है वो शिफ्ट होता रहता है और उसकी वजह से उससे होता ये है कि देन यू गेट टू सी एंड गेट टू know a lot of different mechanisms under which different organizations are working. लेकिन ज़्यादा बात क्योंकि मेरा CJS के अंदर ही डायरेक्ट मेन स्ट्रीम जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में गुजरा है जो मेरा अपना पंजाब पुलिस का जितना है उसमें मेरा मोस्टली आई हैव रिमेन्ड आइदर SP इन्वेस्टिगेशन और SSP इन्वेस्टिगेशन. तो आई थिंक इट इज़ वेरी मच रेलिवेंट फॉर द क्लास बिकॉज सब जो यहाँ पर ऑनरेबल जजेस बैठे हुए उनको पता है कि जो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड हमारा जब भी इंटरेक्शन अदालतों के साथ होता है वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो है वो कर रहे होते हैं जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स होते हैं जो हमारे ऑपरेशनल साइड पे होते हैं वो भी अदालतों में जा रहे होते हैं केसेस प्रेजेंट कर रहे होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा SP इन्वेस्टिगेशन और SSP इन्वेस्टिगेशन जो है वो जो केसेस है उनको प्रेजेंट कर रहा होता है. So that is something and that is why I am very happy that we will be sharing this platform and I'm hoping that I will get to learn a lot many things from all the participants और बाकी जो है आप इसीलिए probably जो बाकी trainings आपने attend की होंगी sometimes you feel that there is a disconnect between what the trainer or the instructor is saying and your ground reality. So I'm sure कि हमारा disconnect उतना ज़्यादा नहीं होगा because even though I do not come from judiciary myself, I do understand the working and क्योंकि हमारा close coordination होता है तो इस वजह से I'm sure कि हमारा ये course जितना हमारा duration है 2 weeks का ये helpful रहेगा उसके लिए given our common grounds. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी सारे पार्टिसिपेंट्स से इफ वी कैन गो इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. फुरकान इज दैट इफ दैट वर्क्स क्योंकि आपने कल भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किया था तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग ये डिस्प्ले हो रही है आपको स्लाइड कि आप प्लीज इंट्रोड्यूस करवाइए अपना नाम डेजिग्नेशन फिर नंबर ऑफ इयर्स आपको कितने सर्विस में हो गए हैं एंड व्हाट डू यू एग्जैक्टली एक्सपेक्ट फ्रॉम द कोर्स. तो हम शुरू करते हैं मिस आलिया सहर से. Name Alia Sahar and I am working as a family judge Umarkot and since 6 years I am in service and expectation from the course is good to learn something. मैडम आपका कैमरा ऑन है? नहीं ऑन नहीं है मेरा कैमरा तो ऑफ है. अच्छा ठीक है चले हम आगे जाके ना बिकॉज वी विल ट्राई हम जरा इसको इंटरेक्टिव रखेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि जो है ना अपना कैमरा किसी पॉइंट पे जब हम कर रहे हो एक्सरसाइजेस तो तब ऑन कीजिएगा. जी जी. Moving forward to Ms. Almas Batul. I am presently serving as a family judge Hyderabad and it's my 6th year in the service. And your expectations from the course? Productive. It may be productive. Mr. Azizur Rahman. Mr. Aziz. I am Azizur Rahman, senior civil judge from Karachi District East, and I have served judiciary for last 10 years, and I expect that this course would be hopefully beneficial for the female judges, so also the male judges also. So we are moving forward to Miss Anna Junejo. Yes. My name is Anna Junejo and I'm posted as senior civil judge in Karachi East and I have 10 years experience of working in service and I expect something fruitful from the course. Right, thank you. Miss Faima Noshin. Assalamu alaikum.
I'm Faiman Rasheen. I'm serving in judiciary as a 11th Judicial Magistrate Civil Judge Karachi East since past 6 years and 6 months. And I expect that this course may help all the participants to get themselves adjust with the stressful work and to do like this कि जो आने वाला टाइम होगा उसमें मुमकिन है कि ये कोर्स हमें कहीं ना कहीं कुछ हेल्प आउट कर सके. Thank you. Right. Mr. Ghulam Murtaza. Assalamu alaikum. I am Ghulam Walaikum Murtaza, senior civil judge, presently posted at Balir, Karachi. I had joined the judiciary in the year 2012. As regard the course, everyone will get the benefit from this, inshallah. Sure. Mr. Gul Mohammed. Gul Mohammad Biro is here. I am posted as the civil judge and judicial magistrate at Gambut, and I am in service since 2014. And I believe that this course will help us. Right. Ms. Kausar Gabol. Assalamu alaikum everyone. My name is Kausar Gubul. I am posted as Civil Judge 1 Matiari. I have completed my 3 years in service, and my expectation from this are that something new and valuable we will learn from this. Thank you. Thank you, Ms. Kausar. Ms. Rosina Kamrani. Assalamualaikum. My name is Rosina Kamrani. I am posted at Tando Mohammed Khan, and I have completed 3 years in judiciary. And expectation it would be beneficial for all of us. Thank you. Thank you, Ms. Ms. Sadi Amjad. Assalamu alaikum. Sadi Amjad. I have been in service for last 6 years. Presently, I am posted at District South, Port JM. Expectation course से ये है कि of course I'm a female judge तो शायद मेरी issues को भी deal करें. Interested लग रहा है मुझे शायद. Mr. Shafqatullah Onar. Assalamu alaikum. Shafqatullah Onar here. I'm working as senior civil judge 2 at Khairpur district. I've been serving in judiciary since last 16 years. Expectation from court may help in management of stress, I believe. Thank you so much. Thank you, Mr. Shafqatullah. We have Ms. Shahnaz Bohio with us. Ms. Shahnaz. Yes, my name is Shahnaz Boyo, presently serving as Senior Civil Judge Karachi Central. I am in this judicial department since last 15 years. My expectation is that the course will be more informative and beneficial for all the participants. Thank you so much. Thank you, Ms. Shahnaz. Mr. Naveed Ahmed. Thank you. I am Naveed Ahmed. I am in service in the last 16 years as now working as Senior Civil Judge Karachi South. As far as expectation from the course is concerned, I think it will be beneficial as far as effective role of leader while presenting the course is concerned. And it will also be beneficial as far as communication is concerned, management of the stress is concerned, because we all deal with stressful work. So hopefully, inshallah, it will benefit. Thank you, Mr. Naveed. Ms. Rukhabun Nisa. Rukhabun Nisa. Ji, Assalamu alaikum. This is me, Rukhabun Nisa, presently posted at Karachi Central, serving since last 6 years as family judge. And my expectations from this training is that this course will be helpful in all respects, and it will help us to recognize our own skills as well to benefit the other women to improve their skills. Thank you. Thank you. Lastly, we have Ms. Uzma Matlu. Assalamu alaikum. This is Uzma Metlo. I have been in judiciary since almost 7 years, and I also served as a judge of a family court. Presently, I'm serving in District Center as a senior civil judge. I expect this that this course will be
beneficial for every participant, and we will learn to manage, in fact, more techniques and guts to work in a stressful condition effectively and within a controllable situations. So thank you so much. Assalamu alaikum. My name is Shumaila Pyar Ali. I am serving as third senior civil judge at District Maldives. Okay, so let us formally start. From the very outset, let me just share कि हम ज़्यादा इस exercises को interactive रखेंगे because this is for your learning. और अगर आप लोग अपने cameras on रखेंगे तो मेरे लिए आसानी होगी. I can put a face to the name. Otherwise, I have a list with me क्योंकि मैंने इसमें individual exercises भी रखी हैं और फिर group exercises भी हैं. तो otherwise, I will have to just bother you from your name जो मुझे वहाँ पे display हो रहा है. अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको ये इंट्रोडक्शन कोर्स का जो मुझे आपकी एक्सपेक्टेशन से अंदाजा हुआ है, दैट्स व्हाई आई पुट द क्वेश्चन देयर कि मैं ये जानना चाहती थी कि आपको कोर्स से आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है. तो जहाँ तक मुझे समझ आया है, प्रोबेबली आपने लीडरशिप, मोटिवेशन, टीम बिल्डिंग पे कोर्सेज या तो कम अटेंड किए हैं या फिर दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू आर अटेंडिंग सच अ कोर्स. बट इट्स नेवर टू लेट. जिस तरह मैंने कल भी जिक्र किया था कि अब जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो पब्लिक सर्विस के अंदर भी रिकग्नाइज किया जा रहा है कि जब आप की जो स्किल्स, हार्ड कोर स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं अपने प्रोफेशन में, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, CJS प्रैक्टिशनर्स हैं, उस तरह से उनको सॉफ्ट स्किल्स भी चाहिए होती हैं. जब तक सॉफ्ट स्किल की डायमेंशन वो नहीं लेके आते, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू ग्रो. अब यूजुअली जब ट्रेनिंग्स हम करवाते हैं और खासतौर पर वेरेवर आई एम एन इंस्ट्रक्टर और ट्रेनर, आई एम यूजुअली वेरी कैंडिड इन माई ट्रेनिंग्स. उसका फ़ायदा ये होता है कि वैसे तो आपको पता है कि ऑनेस्टी इज़ ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकली करेक्ट होने के आदी होते हैं तो इस वजह से हम ज़्यादातर एनवायरनमेंट्स के अंदर अपनी ओपिनियंस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं. ट्रेनिंग्स में हमारे पास ट्रेनिंग एनवायरनमेंट और क्लासरूम एनवायरनमेंट इज़ वन प्लेस जहाँ पर आप कोई ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं या कोई अपनी ऑब्जर्वेशन देते हैं, तो उसमें देयर इज़ नो हार्म डन बिकॉज ये लर्निंग के पर्पज़ के लिए होता है. तो उसके अंदर आप अपनी कोई ओपिनियन एक्सप्रेस करें. इसलिए मेरी कोशिश होती है कि क्लासरूम एनवायरनमेंट में जितना हम हकीकत से करीब तर अपनी ओपिनियन को रख सकें, उसमें फ़ायदा ये होता है कि जो ट्रेनी की नीड है वो भी फुलफिल होती है और ट्रेनर को भी आइडिया होता है कि जी जो ट्रेनिंग नीड्स हैं उसको हम लोग उस गैप को जो है वो ब्रिज कर रहे हैं कि नहीं. तो इसलिए आई अंडरस्टैंड कि अभी रमज़ान है, फिर उसमें आपके ये कोर टाइमिंग्स के बाद के टाइमिंग्स में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. बट व्हाट आई एम टेलिंग यू कि हम जैसे जैसे इसमें कोर्स में चलेंगे तो आप ये देखेंगे कि लीडरशिप जो है वो सिर्फ मतलब ख़वातीन के लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम उसको विमेन लीडरशिप पर फोकस करें. लीडरशिप के जो ट्रेड्स हैं वो मोस्टली दे आर अबव जेंडर. वो जो फीमेल के हम एक्सपेक्ट करते हैं लीडरशिप के रोल्स, वो मेल के लिए भी ज़्यादातर ट्रेड्स वही रिक्वायर्ड होते हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्यू. जस्ट लाइक मैं अभी आई कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पर ऑल द फीमेल जजेस हु आर पार्टिसिपेटिंग, most of those who have toddlers or small children with them, वो उनके साथ ही हैं. I can hear a few sounds of तो ये जो responsibilities attach हुई हुई हैं फीमेल जिस भी फील्ड के अंदर वो सर्व करी होती हैं, getting them to recognized in the department, वो that is very necessary. जब तक आप ये recognize नहीं करवा पाते हैं कि there are always special needs of every person that comes to the organization, तो जब हम वो रियलाइज नहीं कर पाते हैं तब तक हमारी नीड्स जो है रिकग्नाइज नहीं होती हैं. तो इसलिए आपके जो लीडरशिप रोल है वो फिर बड़े अफेक्ट होते हैं. आप उस तरीके से अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर सकते. मैं जस्ट ऑन अ साइड लाइन आई ऑलवेज शेयर दिस with our male counterparts in the CJS and wherever we are having the discussions कि जब हम women rights और जब हम women spaces की बात करते हैं तो बहुत सारे मेल काउंटरपार्ट्स और हमारे साथ जो मेल कॉलीग्स हैं वो हमें ये कहते हैं कि जी हमें भी बहुत सारे मसाइल हैं और हमारे पास भी वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है और हमारे लिए भी चीज़ें अवेलेबल नहीं है. तो मैं उनको कहती हूँ कि बेसिकली एट सम पॉइंट यू डिसाइडेड नॉट टू रेज योर वॉइस फॉर इट, but if you go on and you decide to raise your voice for the resource constraints that you have, for the difficulties you have, जब से हमारे आपको पता है कि ये एक वेडलॉक पॉलिसी आई है तो उसके बाद वेडलॉक पॉलिसी में खवातीन ने इसको यूज़ किया तो मर्दों को भी एहसास हुआ कि वेडलॉक पॉलिसी उनके लिए भी हो सकती है. मुझे पंजाब का फॉर अ फैक्ट पता है कि वी हैव मैटरनिटी लीव एंड वी हैव पैटर्निटी लीव एज वेल. तो पैटर्निटी लीव भी जो है वो तब लोगों ने अवेल करना शुरू की जब उनको पता चला कि जी ये हम लोगों ने इसके लिए वी हैव ट्राइड फॉर इट एंड देन the male counterparts came to know. मैं अपने महकमे में बीइंग अ DPO इन पंजाब, मैं अपने
इन्वेस्टिगेटर्स को पैटर्निटी लीव देती रही हूँ. So basically what we are trying to do is कि जब एक environment के अंदर both genders are working, male और female दोनों काम कर रहे होते हैं, तो वो basically unless they are working together in a harmony, वो तब तक जो है ना उसके अंदर dissonance रहती है, उसके अंदर एक noise सा रहता है और ऐसे लगता है कि जैसे you are fighting over the resources. लेकिन once you combine your forces तो उससे आपको ये फायदा होता है कि at some point a woman is in a position to represent not only the women in the organization but the male officers as well. तो जब मसाइल की बात हो रही होती है तो they raise the voice of other male colleagues as well कि वो कहते हैं कि जी हम इस तरह करना चाहिए. So I understand कि इस कोर्स में जो आपके जितने आप मेल पार्टिसिपेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होगा कि जब वो अपनी फीमेल कॉलीग्स को और फीमेल काउंटर पार्ट्स को एम्पावर करने के लिए उनके साथ दे विल जॉइन हैंड्स एंड दे विल बी नेटवर्किंग विद देम, उसका ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को बहुत फायदा होता है. And like I said, कि 15% is a very encouraging number that I see because बहुत कम representation है बाकी सब महकमों के अंदर ख़वातीन की. हालांकि हम मेडिसिन और एजुकेशन को बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड समझते हैं कि there are more females there, लेकिन उनकी जो consistency है वो that is not up to that level that should be expected. तो हम ये बात करेंगे, लेकिन ये in any case this course is built generally around being resilient and your leadership roles, your leadership traits, how to manage your stress, how to balance your work and family life, and it particularly talks about women क्योंकि women के challenges as I understand, and again at the cost of repeating myself I would say कि जब हम बात शुरू करते हैं तब हमें फिर जो मेल कॉलीग्स हैं वो आते हैं वो बताते हैं हमारे भी मसले, फिर हमें पता चलता है कि उन्होंने कभी अपने मसले रेज नहीं किए, उनको भी बहुत सारे मसाले आए. ऑलवेज एक्नॉलेज दैट. आई एम श्योर कि यहाँ पर भी कुछ हमारे सिमिलर जो है वो चैलेंजेस होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो हमें पता चलेगा कि मेल काउंटर पार्ट्स आर ऑल्सो फेसिंग डिफरेंट डिफिकल्टीज इन देयर ओन पर्सपेक्टिव. तो वो हम उसमें रेजिलियंस की सबको ज़रूरत होती है. एंड गिवन आर वेरी स्ट्रेसफुल वर्क एनवायरनमेंट्स नाउ डेज with the media coming in and with a lot of external informal accountability, I understand कि जो public sector का खास तौर पर criminal justice का काम है वो बहुत challenging हो गया है. So we will get into the details. Let us formally start. This is just a brief introduction and I will really appreciate कि आप लोग अपने cameras अगर on रखें और हम discussion को जो है वो open रखें. Whenever we go for an exercise, please raise your hand. कोशिश तो हम करेंगे कि सब बारी बारी बोले, but again if you raise your hand तो you'll get an opportunity first because मुझे वो display हो जाएगा कि you want to speak. So let's talk about what is resilience. Can somebody just I must say just from the start there are no right or wrong answers. They are just observations and comments. Anybody would like to comment what is resilience? I think it is a flexibility to adjust. Flexibility. Anyone else? We have Miss Anna. She has जी, Anna, Madam Anna, please बताइए. Precisely, I would say resilience means being flexible. बिल्कुल. और कोई observation कोई देना चाहेगा resilience के बारे में? Ability to recover quickly from any situation, flexibility in another sense. Very nice definition. Ji, Madam Faima. I think it is skills of management with the work. जी बिल्कुल. That is also one definition. मुझे कोई आप में से बताएगा कि how is it different from strength? How do we differentiate के strength और resilience में क्या फर्क होता है? रोजे में हमने जागते भी रहना और कुछ थोड़ा सा participate भी करना है, इसलिए you can speak without telling me कि आप you just raise your hand and please make an observation. I think one may be strong or may have strength but may not be resilient. जी ठीक है. Can you give an example? For example, I say example is that yes, strong. Someone may be strong, but he may not be flexible. So be adjusted somewhere. बिल्कुल ठीक. Very good. Anyone else? कोई डेली लाइफ में से कोई एग्जांपल दे सकता है कि एक बंदे की स्ट्रेंथ रेजिलियंस से कैसे फर्क हो सकती है? हम यहाँ पर जब पुलिस की ट्रेनिंग करवाते हैं तो हम लोगों ने जो इनकी फिजिकल जब हमने इनकी रेजिलियंस बिल्ड करनी होती है, एंड्योरेंस बिल्ड करनी होती है, तो हम इनको डिफरेंट लेवल्स पे जज करते हैं. एक स्ट्रेंथ ये हो सकती है कि जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, अ पर्सन माइट बी एबल टू होल्ड एंड
वेट वो 10 kg का उठा सकता है, for how long they can carry that weight, that is their resilience. तो एक बंदा 10 kg वेट तो हो सकता है उठा लेता हो, लेकिन कितनी देर वो उसको होल्ड कर सकता है, वो उसकी रेजिलियंस होती है. दैट इज वन ऑफ द डेफिनेशंस. देयर कैन बी मेनी डेफिनेशंस एज वी विल सी इन द सब्सिक्वेंट स्लाइड्स. लेकिन फॉर आवर ओन अंडरस्टैंडिंग, आप लोगों में से काफी लोगों ने बिल्कुल सही इसकी ऑब्जर्वेशन दी है कि स्ट्रेंथ एक बंदे की नॉट नेसेसरीली एनेबल्स हिम और हर फॉर रेजिलियंस. एक बंदा स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो रेजिलियंट भी हो. बट अ रेजिलियंट पर्सन नेचुरली हैज सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ. नेक्स्ट पे जाइएगा प्लीज. Now, if we broadly speaking, there can be many definitions, but अगर हम इसको करें तो ये ability to bounce back, ये bounce back का कोई आप बता सकते हैं कि bounce back किस चीज से कर सकते हैं? What are we talking about when we say bounce back? Okay, bounce back, I think to quickly respond in that situation. That's a very good example. But do you think that we have situations and stresses in life from where we have to bounce back ultimately? And they are not always people who bounce back all the time. Yes, I agree. जी. Can you give any example के जब हम bounce back की बात करते हैं, resilience की, कि जी bounce back तो किस तरह की situations लाइफ में होती हैं जिनसे हमें ना चाहते हुए भी bounce back करना पड़ता है? And presently, I can't recall it. It could be a personal loss of your very near relatives, loss of your parents. Yes. तो उससे भी हम bounce back करते हैं. Bounce back, लेकिन आपने ये भी देखा होगा, आगे हम जाके stress की बात करेंगे कि not everyone has the capability of bouncing back. Some people, because of certain setbacks and challenges in their life, they get stuck in that mode, in that phase of life. तो बाउंस बैक की और कोई आप एग्जांपल दे सकते हैं? एक तो हमने कर लिया पर्सनल लॉस और ग्रीफ हो सकता है, और कोई चीज ऐसी हो सकती है जिससे आप बाउंस बैक करते हैं? बिकॉज आई एम श्योर कि आप सबका अब एक्सपीरियंस जो है फ्रॉम 6 years टू ऑनवर्ड्स आपका है, तो आपने उसमें देखा होगा कि आपको वर्क में भी ऐसे सिचुएशंस आती हैं, आपको पर्सनल लाइफ में भी आती हैं कि जिससे आपको बाउंस बैक करना पड़ता है. आप फाइनेंशियल कोई क्राइसिस हो, जी उसमें you can always bounce back. वेरी गुड एग्जांपल, वेरी गुड एग्जांपल. फॉर मी अगर पर्सनल इश्यूज की बात करें तो अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मैं कहूंगी इसमें मेडिकल को भी डाल लीजिए. जी बिल्कुल बाउंसिंग बिल्कुल. बैक फ्रॉम I ग्रेट always इलनेस. talk about women bouncing back from their postnatal depressions. They becoming a mother to a child is always very stressful, both physically and mentally. And all women in our society, it's not even talked about. They just immediately bounce back. But it's only the mother who knows how they are bouncing back to a very normal lifestyle. So I completely agree. I think that the male participants are in minority and they are choosing to be in minority. मेरे ख्याल से जी. जो है वो बाउंसिंग बैक का ये मकसद है, अगर आप किसी स्ट्रेसफुल वर्क से डील कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में जाते हैं, देन यू शुड हैव एबिलिटी टू बाउंस बैक. जी फिर आप उसको फिर आप आ जाएं, फिर आप अपने नॉर्मल पोजीशन में स्ट्रेस को मैनेज करें. बिल्कुल. फिर आप दोबारा अब ये रिकवर करके और फिर आप उसी वर्क को दोबारा शुरू करें. जी, very nice example. So this is basically resilience is the ability to bounce back from a situation, because unless you do that, आपके पास you have very limited space. इसका मतलब है कि आपकी strength तो है, लेकिन आपकी resilience और flexibility नहीं है to go back to the same situation, carrying that burden and weight with you. It is also said, जब stress management दुनिया में काम हो रहा है, तो उसमें अब लोग people realize, जिस तरह West में हमारे उनसे बहुत सारी चीज़ों के अंदर we have conflicting ideas. The West thinks that you go through a trauma, you go through a situation and then you move on. लेकिन ऐसा psychology और interdisciplinary जो उनकी studies हैं, they are showing that it is very hard to move on from a bad experience. You do not move on, you carry the burden with you. और आप उसमें से बेसिकली कोप अप करके, बाउंस बैक करके, उसके बाद आप यू मूव ऑन इन अ फैशन लाइक यू लीड अ नॉर्मल लाइफ, लेकिन वो बर्डन आपके साथ रहता है. लाइक आई सेड के जिस तरह किसी ने अभी एग्जांपल दी फाइनेंशियल की है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ डीप योर लॉस इज. अगर आपका फाइनेंशियल लॉस है, प्रॉबेबली आप उसको रिकवर कर जाएंगे, फिर आप यू कैन अर्न मोर मनी. बट देयर आर थिंग्स व्हिच आर इरिप्लेसेबल. फॉर एग्जांपल लूजिंग योर पेरेंट्स, लूजिंग योर चिल्ड्रन, लूजिंग योर डियर वंस.
तो उसके अंदर बाउंस बैक करके, लेकिन इसीलिए फिर बहुत सारी जो अब नई स्टडीज और रिसर्च की वजह से मेंटल इलनेसेस और मेंटल हेल्थ की बात होती है, सो दैट people bounce back and they know how to carry that burden in a very normal way, in a way that they can lead their lives normally. अच्छा, इसमें resilience में mental toughness भी आती है. आपने देखा होगा कि सब लोग nerves के एक जैसे strong नहीं होते हैं, और मैं खास तौर पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और जुडिशरी को और पुलिस को मैं इसलिए समझती हूँ बिकॉज police being the first responders, they see a lot of trauma all the time, like doctors see a lot of trauma all the time. Judiciary I think is all the time very much exposed to traumatic conditions, to the trauma and loss of people and their different sort of losses. वो financial हो सकता है, वो physical हो सकता है, वो कोई injury हो सकती है. तो उसमें resilience इसलिए भी judges के लिए बहुत important है because जब आप किसी सेकंड पर्सन की कोई मिजरी देखते हैं, उसको आप इंटरनलाइज कर लेते हैं. आपने देखा होगा कि जब आपने एक सर्विस स्टार्ट की होगी और आपने अपने केसेस जब सुनने शुरू किए होंगे, तो इफ यू गो बैक एट दैट टाइम व्हेन यू स्टार्टेड, तो आपको फील होगा कि उस वक्त आप बहुत ज्यादा किसी के जब बात सुनते थे कोर्ट में, जब आपका इंटरेक्शन होता था, तो यू वुड फील वेरी सैड फॉर देम, और you would relate with them, or you would want to do something with them. But with the passage of time आप एक resilience build कर लेते हैं, जो कि which is an ideal condition and that is a must do. Otherwise अगर आप किसी का trauma internalize करना शुरू कर दें, तो उसके बहुत सारे आपके mental health के ऊपर बहुत सारे impact हो सकते हैं. और पूरी दुनिया में, here I must share that unfortunately we do not have a mechanism, लेकिन पूरी दुनिया में जो लोग criminal justice में काम करते हैं, उनकी therapies और उनकी mental health के लिए अलग mechanisms मौजूद होते हैं. उनके लिए अलग जो है साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट अवेलेबल होते हैं, सो दैट अगर मेडिसिन के थ्रू उनको कोप करना है या उनको किसी थेरेपी के थ्रू करना है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा ट्रॉमा हर वक्त देखते हैं, इट इज़ ह्यूमनली नॉट पॉसिबल टू नॉट गेट अफेक्टेड. और आई एम श्योर कि आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ में इसको देखते होंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे काम की वजह से हम ऐसे बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोज हो रहे थे जो एक नॉर्मल बंदा जब तक वो टीवी नहीं लगाएगा, अखबार नहीं पढ़ेगा, तो उसको वो शायद ना पता चले. लेकिन हमारा काम की नेचर इस तरह की है कि जब हम देखते हैं तो सॉर्ट ऑफ वी स्टार्ट इंटरनलाइजिंग, और जब किसी टाइम आपको बहुत सख्त जजमेंट देनी पड़ती होगी, किसी टाइम आपको बहुत मुश्किल जजमेंट देनी पड़ती होगी, इट ऑलवेज हैज अ टॉल, इट टैक्सेस योर मेंटल हेल्थ. इसलिए भी रेजिलियंस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ यू डू नॉट बाउंस बैक फ्रॉम अ डिफिकल्ट केस जो आपने देखा है, आपने उसके ऊपर डिसीजन करना है, एंड यू हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट ऑल डे, डिसीजन मेकिंग इटसेल्फ इज वेरी वेरी डिमांडिंग एंड चैलेंजिंग. तो इसलिए मेंटल टफनेस बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रेंथ, ये मेंटल भी है, ये फिजिकल भी है, ये साइकोलॉजिकल भी है. तो आपको स्ट्रेंथ एट डिफरेंट लेवल्स चाहिए होती है. बीइंग जजेस, स्ट्रेंथ इज़ अ मस्ट. और आपने खुद देखा भी होगा, बहुत सारे आपके शायद कॉलीग्स ऐसे हों जिन्होंने आपके साथ जुडिशरी का प्रोफेशन ज्वाइन किया होगा, लेकिन बिकॉज के इसके कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं स्ट्रेंथ के, मेंटल टफनेस के, नर्व्स के, वो हो सकता है उसको कोप अप ना कर पाए हों. हो सकता है they might have gone to other professions, or they might have opted to go and join something which is less challenging. So I'm sure कि आप लोग जिस तरह का challenging काम कर रहे हैं, इसमें resilience is very relevant to you. Then we have already talked about flexibility to change. जितने आप flexible होते हैं, वो flexibility आपको bounce back करने में भी help करती है. Please next पे जाइए. Another definition is the ability to recover or adjust easily to misfortune or change. अब आपने ये देखा होगा कि चेंज जो हमारी होती है जिंदगी में, अदरवाइज भी नॉट नेसेसरीली रिलेटेड टू वर्क प्लेस. अभी आप देखिए कि मोस्ट हमारी रेलेवेंट एग्जांपल है, जिस वक्त रमज़ान स्टार्ट होता है, हमारी पूरी रूटीन शिफ्ट हो जाती है, हमारा डे एंड नाइट का शेड्यूल शिफ्ट हो जाता है, हमारे वर्क टाइमिंग्स. तो चेंज जो हमेशा होता है वो आपको एक ऐसी चीज़ है जो बार बार कन्फ्रंट लाइफ में करना पड़ता है. कुछ जगहों पर वो एक्सपेक्टेड होता है, कुछ जगहों पे वो अनएक्सपेक्टेड होता है. जी मैडम शहनाज, आप कुछ कहना चाह रही हैं? Can you again describe mental toughness? जी मैडम, मेंटल टफनेस जो है ना, वो दैट इज जस्ट रिलेटेड टू योर नर्व्स. फॉर एग्जांपल आई वुड से कि हमारे प्रोफेशंस के अंदर जो लोग, जिनको हम समझते हैं जो ज़रा ओवर सेंसिटिव होते हैं, वो बहुत सारी जगहों पे कोप अप नहीं कर सकते. आई हैव एक्चुअली सीन साइकोलॉजिस्ट, आई हैव एक्चुअली सीन अ लॉट ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, वो जब इतने ज़्यादा लोगों को ट्रॉमेटाइज देखते हैं, वो अपनी नर्व्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, और वो इतना ज़्यादा उनके ट्रॉमा के साथ रिलेट कर लेते हैं दैट इट इज़ completely impossible for them to function as a judge, as a prosecutor, as a police officer. तो इसलिए मेंटल टफनेस आपको एक मिनिमम, जितना डॉक्टर है, अगर उसने रोज लोगों के इंजरीज देखनी है, बोन्स एक्सपोज्ड हैं, ब्लड जो है वो देख रहे हैं,
बहुत डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम्स कर रहे हैं, तो आपको पता है कि एक मिनिमम लेवल ऑफ मेंटल टफनेस इज रिक्वायर्ड फॉर अ सर्टेन प्रोफेशन. I hope that answers your question. Thank you so much. So we were talking about कि जो चेंज है उसके साथ कोप अप करने का. अब आपने ये देखा होगा जो डार्विन की थ्योरी भी जो है एवोल्यूशन की, वो जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की वो बात करता है, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये नहीं है कि जो किसी दूसरे को कोनी मार के आगे निकल जाएगा वो फिटेस्ट है. फिटेस्ट वो है हु इज मोर फ्लेक्सिबल टू चेंज. तो इसलिए जो एवोल्यूशन जितना हुआ है, जितनी स्पीसीज का जो एक्सटिंक्ट हो गई, वो इसलिए एक्सटिंक्ट हो गई क्योंकि दे कुड नॉट अडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट. वो आप देखें, अगर आप अपने एनवायरनमेंट में भी देखें, जितनी आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और रेजिलियंस बिल्ड करेंगे उतना ज़्यादा चांस होगा दैट यू कैन गेट अहेड इन योर प्रोफेशन. बिकॉज अल्टीमेटली इन सारी सॉफ्ट स्किल बिल्डिंग कोर्सेज का एम ये होता है कि आप वर्टिकली तो ग्रो कर रहे होते हैं. आई एम श्योर कि आपके भी ग्रेड 17 से आप स्टार्ट करते हैं, फिर 18 एंड 19 एंड देन यू बिकम सीनियर. एक वर्टिकल ग्रोथ होती है, एक हॉरिजॉन्टल ग्रोथ भी होती है. जब आप सिर्फ वर्टिकली ग्रो कर रहे होते हैं, अगर आप दरख्त को भी देखें, जब वो वर्टिकली ग्रो करता है उसका कोई सपोर्ट मैकेनिज्म नहीं होता. एक आंधी आती है उसको उखाड़ देती है. जब आप हॉरिजॉन्टली ग्रो करना सीख जाते हैं, आप वेल बैलेंस्ड होते हैं. आप देखिए दरख्त जितना बड़ा होगा, जितने उसकी तने और शाखें फैली भी होंगी, उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा. वो तेज से तेज भी आंधी आएगी, उसको जो है वो हो सकता है छोटा मोटा तो नुकसान पहुंचा सके, लेकिन उसको उसकी जगह से हिला नहीं सकेगी. तो इसलिए ये सॉफ्ट स्किल्स, आई ऑलवेज टेल द ट्रेनीज के सॉफ्ट स्किल्स हेल्प यू ग्रो हॉरिजॉन्टली. तो कोशिश करें कि ये कोर्सेज तो अपनी जगह हैं, कुछ तो आई एम श्योर कि आपको जब नॉमिनेशन आपकी हुई होगी तो शायद आपको पता भी नहीं होगा और आप पूछ भी रहे होंगे कि जी मेरा नाम किसने कोर्स में डाला. बट आई ऑलवेज टेल द पीपल हु हैव पुट इन एटलीस्ट 5 years ऑफ सर्विस इन एनी प्रोफेशन कि 5 साल से ऑनवर्ड्स फिर आपकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ बहुत ज़रूरी हो जाती है. आप उसमें सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ सकते हैं, आप कोर्सेज अटेंड कर सकते हैं, आप इंटरनेट पर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो आप करें, क्योंकि उससे ये होगा कि आपकी जो ग्रूमिंग है, योर पर्सनैलिटी विल ग्रो. दिस इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर ये. पुराने ज़माने की बातें होती थी जब ये कहते थे लोग कि जी बस अपना तन मन धन कुर्बान करके आप जो है ना पब्लिक सेक्टर में नौकरी, उसको अच्छा समझा जाता था. सरकारी मुलाजिम वो अच्छा होता था जो जिसका कोई घर बार नहीं होता था, जो सारा टाइम अपना प्रोफेशन को देता था. अब ये कॉन्सेप्ट चेंज हो रहे हैं बिकॉज हमने करके देख लिया है कि 70-75 सालों में जिन लोगों ने अगर अपना इतना टाइम दिया, तो उसके बाद तो हम लोगों को आई ऑलवेज से दिस कि हमें तो चांद पे होना चाहिए था, जो कि हम नहीं है. इसका मतलब है कि वी आर डूइंग इट रॉन्ग. वी मस्ट गो बैक एंड चेंज आवर मेथड्स. और अब जो नए मेथड्स हैं वो सारी दुनिया में ऐसे हैं कि आप हॉरिजॉन्टली वर्टिकली ग्रो करते हैं, अपने लिए भी टाइम निकालते हैं, अपने फैमिली के लिए टाइम निकालते हैं, वर्क को उतना ही टाइम देते हैं और उतना ही स्ट्रेस उसका लेते हैं जितनी रिक्वायरमेंट है. Now this is a modern definition of resilience. If you can all read from the slide, you can see that one part is advancing. Advancing, as the name suggests, means going ahead, moving forward. So this is goal orientation and work towards your vision. अच्छा, अब जब विजन की बात आती है, आपने ये भी देखा होगा लीडरशिप के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका अपना भी कोई विजन होना ज़रूरी है. मैं जब भी ट्रेनिंग से बात करती हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा मिड करियर से क्योंकि इंटरेक्शन रहता है ट्रेनिंग्स में, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आपका क्या विजन है, तो वो कहते हैं हम तो जी बॉस के विजन पे चल रहे हैं. हम तो जी वो हमारे जो इमीडिएट बॉस है या उनका विजन है, जो ऑर्गेनाइजेशन को हेड करते हैं उनका विजन है, उनका अपना कोई विजन नहीं होता. एंड इट इज ऑल्सो सेड दैट इफ यू डू नॉट फॉलो योर ड्रीम्स यू विल फॉलो समबडी एल्सेस ड्रीम्स. तो इसलिए आपका अपना भी कोई ड्रीम होना चाहिए. जरूरी नहीं कि वर्क रिलेटेड ही हो, आपका कोई पर्सनल लाइफ में कोई गोल होना चाहिए, कोई विजन होना चाहिए. दैट एक्चुअली हेल्प्स यू बिकम अ लीडर. जब आप लीडर के ट्रेट्स देखेंगे तो उसके अंदर जब आपका कोई विजन होगा, कोई गोल होगा, आप ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग इन सम फॉर्म ऑफ अ लीडर. So you advance despite you have to be proactive. आपने किसी चीज़ का इंतजार नहीं करना. आपने देखा होगा कि जी लोग कहते हैं कि जी कोई आजमाइश आती है, कोई चैलेंज आता है, तो दैट मेक्स देम अ लीडर. तो आपने आजमाइश आने का इंतजार नहीं करना, आपने पहले से ही डिसाइड कर लेना है कि if I want to become a leader, I can always become a leader. अच्छा, this is very relevant because मैं leadership trainings करवाती हूँ. I always ask the class this कि कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि लीडर जो है वो बाय बर्थ होता है, वो पैदा ही लीडर होता है, और कितने लोग ये समझते हैं कि लीडर बनाया जा सकता है. मेरे हिसाब से लीडर बनाया भी जा सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप बॉर्न लीडर हो. बहुत सारी चीज़ें आपको लाइफ के एक्सपीरियंसेस से और उससे भी आप सीखते हैं जब आप चीज़ें फेस करते हैं. तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बॉर्न लीडर हो या आपके अंदर जो है लीडरशिप क्वालिटीज जो है वो बाय बर्थ ही हो. जी, वेरी राइट. जी सर अजीज. जी, कल सर्वे में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था
कि लीडर बाय बोर्न होता है या उसको बनाया भी जा सकता है। मेरे ख्याल में भी लीडर बनाया जा सकता है। एक्सपोजर्स होते हैं लाइफ में बहुत ज़्यादा, जी जिनको देखकर सीख कर बंदा लीडरशिप क्वालिटीज अपने जी अंदर पैदा कर सकता है। जी, वेरी राइट। बट आई थिंक कि हमें तो कोई डिबेट का मौका ही नहीं मिला, बीच में किसी ने कहा ही नहीं कि लीडर जो है वो सिर्फ वो, आई थिंक कुछ हम लोग का कंस्ट्रेंट है ऑनलाइन का भी, वरना इट इज ऑलवेज वेरी एंटरटेनिंग एंड यू नो गुड लर्निंग टू लिसन टू दोस्त, बिकॉज सब लोग बड़ा फोर्सफुली जो बिलीव करते हैं कि लीडर पैदा ही होता है, वो उनके पास बड़ी अच्छी एग्जांपल्स होती हैं। बट लेट्स मूव ऑन, एंड आई ऑल्सो बिलीव, आई एम ऑल्सो फर्म बिलीवर, ये लीडरशिप के पूरी दुनिया में कोर्सेज आप देखें कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो लाखों डॉलर्स के मोटिवेशनल स्पीकर्स को हायर करके अपने कंपनी के एम्प्लॉइज को सिर्फ इसीलिए सुनवाती हैं बिकॉज जब उनके एम्प्लॉइज मोटिवेटेड होते हैं एंड दे आर विलिंग टू बिकम लीडर्स, तो ऑब्वियसली उनका रेवेन्यू बहुत बढ़ जाता है। और इसीलिए वो भी पूरी दुनिया में जो है इस चीज़ के ऊपर अब आहिस्ता आहिस्ता दे आर शिफ्टिंग देयर व्यू कि देयर आर सम पीपल हु आर बोर्न विद सर्टेन क्वालिटीज व्हिच हेल्प देम इन देयर लीडरशिप रोल्स। लेकिन जब हम ये कह देते हैं कि लीडर बनाया जा सकता है, तो हम बेसिकली पूरी जो आपके पास स्पेक्ट्रम है सोसाइटी का, उसके लिए यू ओपन द डोर्स। अनलाइक के व्हेन प्रोबेबली वी वर ग्रोइंग अप, वी वर इन स्कूल कॉलेज, हमें ये बताया जाता था कि जी लीडर तो पैदा ही होता है, कायदे आजम ही वो जब पहले दिन से जब पैदा हुए थे वो तब से ही ऐसे थे, अल्लामा इकबाल पहले दिन से ही ऐसे थे, नेल्सन मंडेला पहले दिन से ही ऐसा था। तो उसका मतलब है कि यू आर एक्सक्लूडिंग सो मेनी पीपल, मिलियंस ऑफ लोगों को आपने वो चांस ही नहीं दिया। लेकिन ओपनिंग द डोर्स टू लीडरशिप मीन्स के आप हर बंदे को दिस बेसिकली व्हेन यू गो बैक टू योर वर्क प्लेस आफ्टर दिस कोर्स, आपके जो दफ्तर में जो आपका ऑफिस बॉय है वो भी अपने तौर पे एक लीडर हो सकता है, जो आपका पर्सनल असिस्टेंट पीए है, आपका रीडर है, आपका कोर्ट का स्टाफ है, वो भी अपने अपने तौर पे लीडर हो सकते हैं। इन सारे लोगों को उनकी लीडरशिप रोल समझाने का सबसे बड़ा फायदा टीम लीडर को होता है, क्योंकि जब सब लीडरशिप रोल्स प्ले कर रहे होते हैं तो आपको कम काम करना पड़ता है, आप अपना काम करते हैं, वो अपना काम करते हैं। हमारे पब्लिक सेक्टर में एक बहुत ज्यादा ये आई वुड से दैट दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ डिजीज कि यहाँ जो बंदा काम करता है उसको और काम दे देते हैं कि ये अच्छा काम करता है उसको और काम दे दो, और जो नालायक होता है उसको हम कहते हैं कि जी इसको कोई काम ना देना, ये काम खराब कर देगा। तो उसकी वजह से एक बंदा ऐसा होता है जिसके पास, आई एम श्योर आप लोगों में से भी होंगे, जिसके पास 3 कोर्ट्स के चार्ज चल रहे होंगे या 3 लोगों का वो काम कर रहा होगा, और जो काम नहीं करता होगा उसको कहते होंगे कि जी ये अब मेडिकल पे भी छुट्टी पे है, फिर उसके बाद वो बाहर कोर्स पे भी चला जाता है। सो यू नो हम as a society we are very averse somehow to encouraging leadership and to teach leadership, और लोगों को हम ये कहते हैं, कोई हमारे पास आपके भी आई एम श्योर के स्टाफ में से आता होगा तो वो कहेगा कि जी मैं कोई काम नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला ने किसी को भी निकम्मा नहीं पैदा किया, वो किसी ना किसी काम का जरूर होता है। मैं हमेशा अपनी टीम्स को भी ये कहती हूँ कि जी उसको कहें कि जी 3 आप ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में दे दें, आप क्या कर सकते हैं। अगर आप बाहर पौधों को पानी दे सकते हैं ना, मेरे पास सब इंस्पेक्टर्स और मेरे पास इन्वेस्टिगेटर्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि जी हमें जो है ना टर्मिनल इलनेस है हमारी, हमें डॉक्टर ने जवाब दे दिया, 2 महीने बाद जो है ना वो, तो उससे फिर हम ऑब्वियसली आपको पता है कि इस तरह का हमारा पब्लिक सेक्टर में ये बड़ा चैलेंज होता है ह्यूमन रिसोर्स का। तो हम उसको कहते हैं अच्छा आप जो कर सकते हैं ना आपको करें, हम उससे ले लेते हैं। एंड यू वुड फाइंड कि वो जिन लोगों को हमने नालायक टैग किया वो होता है, वो सारे के सारे मोस्ट एफिशिएंट टीम मेंबर्स बन जाते हैं और बाकियों को भी पीछे छोड़ जाते हैं। तो दैट इज वाई जो आपको इसमें से कंटेंट कोर्स में से अच्छा लगे जरूर कोशिश कीजिए कि जाएं और अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर करें एंड ट्राई टू इंस्पायर देम टू बिकम लीडर्स इन देयर ओन अफेयर्स। लास्टली जो है एडवर्सिटी की हम बात करते हैं, बोथ लार्ज एंड स्मॉल एवरीडे चैलेंजेस जो आते हैं ना वो आपकी रेजिलियंस बिल्ड करते हैं। अगर आपको चैलेंजेस ना आए, आपने देखा होगा जब हम बच्चों की बात करते हैं कि जी डॉक्टर के पास आप लेके जाए, बच्चों का आए दिन मौसम चेंज होता है, गला खराब हो गया, आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ पेरेंट्स सिटिंग इन दिस क्लास, तो वो डॉक्टर के पास आपने, डॉक्टर कहते हैं कि जी अगर आप इसको आइसक्रीम भी नहीं खाने देते, केचप भी नहीं खाने देते, तो उसका तो गला खराब ही रहना, आपने उसकी इम्यूनिटी नहीं बिल्ड होने दी। सिमिलरली अगर आपको स्ट्रेसर्स नहीं आएंगे, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, मेंटल, आपके पास नहीं स्ट्रेसर्स आएंगे, आपकी रेजिलियंस नहीं बिल्ड हो सकती। जिस तरह फिजिकल स्ट्रेंथ आप बिल्ड करते हैं, आप वेट उठाते हैं, आप जिम जाते हैं, आप अपनी एंड्योरेंस बिल्ड करते हैं, वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, इसी तरह मेंटल रेजिलियंस भी आपको बिल्ड करनी पड़ती है। इट्स नॉट अ गिवन, ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई चैलेंज ना आए और आपकी रेजिलियंस बिल्ड होती रहे। सो दिस एडवर्सिटी इन इटसेल्फ इज एन अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन बिल्ड योर रेजिलियंस। नाउ लेट्स कम टू अनदर डिस्कशन। ये मुझे कोई आप बताइए, अपने कमेंट्स दीजिए कि अगर किसी बंदे में रेजिलियंस ना हो तो क्या उसके जिंदगी में गैप्स हो सकते हैं, चैलेंजेस हो सकते हैं। रेजिलियंस ना होने की सूरत में आपकी क्या कमी होती है लाइफ में? मेरे ख्याल से अगर रेजिलियंस ना हो
या रेजिलियंस की कमी हो तो अपनी लाइफ भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, और दूसरा ये है कि परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। जी जी बिल्कुल, दैट्स अ वेरी वैलिड ऑब्जर्वेशन। एनीवन एल्स? मेरे ख्याल में फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका एडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो फिर इवेंचुअली आप जो है वो जब सिस्टम के साथ और चीज़ों के साथ नहीं चल सकेंगे, तो फिर आप मेंटली और फिज़िकली आप कोलैप्स करना शुरू कर देंगे। जी बिल्कुल, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। अच्छा, अब हमने जनरली बात कर ली है कि रेजिलियंस इंपॉर्टेंट क्यों होती है, कि जिन लोगों के रेजिलियंस और फ्लेक्सिबिलिटी को ओवर द इयर्स बिल्ड कर लेते हैं, तो उनके लिए स्ट्रेसफुल जो कंडीशंस हैं उनको कोप करना, उनको कन्फ्रंट करना आसान हो जाता है, प्रेशर और चैलेंज को लेना आसान हो जाता है। दे कैन ऑल्सो डील विद अदर पीपल्स स्ट्रेस। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर प्रोफेशन, कि अगर हम दूसरे लोगों के स्ट्रेस के साथ डील, एक तो होता है कि हम अपने स्ट्रेस के साथ डील कर रहे हैं और उसका कोपिंग मैकेनिज्म हमारा है। कुछ लोग हैं जो रिलीजियस होते हैं, वो अपनी बहुत सारी स्ट्रेंथ ड्रॉ करते हैं बीइंग रिलीजियस। वो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस से, नमाज से, कुरान पाक से वो अपनी बहुत सारी स्ट्रेंथ ड्रॉ कर रहे होते हैं। हर किसी का अपना एक कोपिंग मैकेनिज्म होता है। कुछ लोग हैं दे फॉलो सर्टेन पीपल, उन्होंने कोई अपना गाइड रखे होते हैं। कुछ लोग हैं जो बुक से अपनी स्ट्रेंथ लेते हैं, कुछ लोग अपने फ्रेंड से लेते हैं, कुछ अपनी हॉबीज से लेते हैं। तो योर वन मेजर टास्क इज टू फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस योर सेल्फ, लेकिन दूसरे लोगों के स्ट्रेस के साथ डील करना, एंड स्पेशली व्हेन इट इज बिल्ट इन योर जॉब डिस्क्रिप्शन, दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। कि अगर आप अगले लोगों के स्ट्रेस को डील नहीं कर पाते तो आपकी रेजिलियंस तब भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। And then we go on to the point where you are working with victims. So I'm sure कि आपके डे टू डे काम में आप लोग भी बहुत सारे विक्टिम्स के साथ जब काम कर रहे होते हैं, आपको जनरली नजर आ रहा होता है हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो ये भी है कि बाज़ औक़ात आपको क्लियरली पता होता है कि एक बंदे के साथ ज्यादती हुई है, और वो क्लियरली मेरिट का तकाजा ये होता है कि आप उसको जो है रिलीफ दें। लॉ जो है वो उसको, जो आपके पास एविडेंस होता है, जो लॉ होता है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा होता, तो आप उस बंदे का एक स्ट्रेस है। फिर दे आर सर्टेन थिंग्स के जो दे आर बियॉन्ड योर स्कोप ऑफ वर्क, उसमें आप उनको बहुत सारा रिलीफ भी नहीं दे सकते, बहुत हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन दूसरे लोगों के स्ट्रेस के साथ अगर आप जेन्युइनली डील करने के लिए आपकी रेजिलियंस नहीं है, तो वो इट स्टार्ट टेकिंग अ टॉल ऑन योर मेंटल हेल्थ एज वेल। और जो इसमें to sustain interest and effort towards long term goals, उसके लिए भी resilience बहुत important है। For example, I'm sure कि आप सब लोगों के अपने workplace के goals होंगे, and I'm talking particularly with reference to the female judges, कि फीमेल जजेस सिर्फ वर्क प्लेस के लिहाज से बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में नहीं काम कर रही होती, क्योंकि उनकी फैमिली ऑब्लिगेशन इतनी ज़्यादा होती हैं, उनकी होम ऑब्लिगेशन इतनी ज़्यादा होती हैं। उनके लिए स्ट्रेसफुल कंडीशंस मीन कम्प्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ चैलेंजेस। उनके लिए प्रेशर्स भी बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, बिकॉज उनकी ऑब्लिगेशंस जो होती हैं वो बहुत मल्टीपल लेवल्स पे स्प्रेड हुई हुई होती हैं। उनके लिए दूसरे लोगों के स्ट्रेस को भी डील करना, वो सिर्फ विक्टिम्स को उसके स्ट्रेस के साथ डील नहीं कर रही होती, बीइंग होम मेकर्स एंड होम मैनेजर्स वो, और क्योंकि एक्सटेंडेड फैमिली और फैमिली को भी वो सपोर्ट कर रही होती हैं एट एन इमोशनल लेवल, तो उनके लिए रेजिलियंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और फिर ये कि इस सारे के अंदर जो सफ़र करता है वो अल्टीमेटली, आई एम श्योर कि इसके अंदर कोई मुझे फीमेल जज इसके ऊपर गाइड कर सकती हैं, कि बहुत मरतबा इस तरह होता है कि आप समझते हैं कि यार जो मेरा वर्क है, माई वर्क इज़ माई लायबिलिटी, कि अगर मैंने इतना टाइम अपने बच्चों को देना है, अपने घर को देना है, अपने हस्बैंड को देना है, अपने पेरेंट्स इन लॉ को देना है, तो फिर जो मेरा जो वर्क है दैट कम्स समवेयर एट द लास्ट, तो वो भी आपको जो है कहीं ना कहीं प्रेशर दे रहा होता है। तो यू थिंक कि इट इज नॉट वर्थ दिस एफर्ट, इट इज नॉट वर्थ दिस, तो आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स है वो कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाते हैं, आपकी परफॉर्मेंस नीचे जाना शुरू हो जाती है। जब आपकी कमिटमेंट गिरती है तो साथ ही आपकी परफॉर्मेंस गिर जाती है, बिकॉज आपकी जो मोटिवेशन है वो रिलेटेड होती है आपके एनवायरनमेंट के साथ। तो जब आपका एनवायरनमेंट जो है वो आपके ऊपर एक बर्डन बनना शुरू हो जाता है, तो दैट स्टार्ट्स गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन योर परफॉर्मेंस एज वेल। इसमें कोई मुझे एग्जांपल देंगी कोई फीमेल जजेस में से, कोई अपने चैलेंजेस की, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट particularly the challenges faced by female judges? अब मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे बच्चे वगैरह बीमार होते हैं, मोस्टली 90% ऐसा ही होता है। तो फिर आपका वर्क बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है उस चीज़ से, और फिर एट टाइम्स ऐसा होता है कि हमें बच्चों को ड्रैग करके अपने साथ कोर्ट लेकर आना पड़ रहा होता है, और वो हमारे साथ चेम्बर्स में बैठे हुए होते हैं, तो ऑब्वियसली उससे फिर काम और हर चीज़ बहुत ज़्यादा सफ़र करती है।
जो मुझे लगता है हर जो फीमेल जजेस हैं जो सारी बैठी हुई, वो उनको मेरे ख्याल में हर वक्त फेस करने पड़ते हैं ये इश्यूज, बच्चों से रिलेटेड जो होते हैं, क्योंकि आप बाकी जी। चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं जो है अडल्ट के ऊपर या बाकी जो मेंबर्स हैं, बट व्हेन इट कम्स टू योर चिल्ड्रन तो फिर उसके लिए थोड़ा सा आपको पता है कि बीइंग अ मदर आप थोड़े सेल्फिश हो जाते हैं। लेकिन मैडम अभी जिससे आपने बात की है, जो आप सेल्फिश की बात करी है, डू यू एग्री कि अगर बाकी लोग आपको ये बार बार नेगेटिव फीडबैक ना देते रहे कि बच्चा आपकी वजह से बीमार हुआ है, या जो है वो आपको जो है छुट्टी जब आप कहें कि जी मेरा बच्चा बीमार है, आई हैव टू टेक माय किड टू द डॉक्टर, तो वो कहें कि जी और कोई घर में नहीं है, एंड यू कैन नॉट से कि यू आर द प्राइमरी केयर गिवर, घर में बच्चा नहीं कोई भी बीमार हो, तो डोंट यू एग्री कि इट इज द वुमन ऑफ द हाउस हु इज द प्राइमरी केयर गिवर? यस, टू सम एक्सटेंट अगर कुछ भी है घर में तो वो जाहिर है मोर पर्टिकुलरली व्हेन यू आर नॉट लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, जब आप सेपरेटली एक अपने फैमिली सिस्टम में रह रहे होते हैं तो फिर ये चीज़ ज़रा ज़्यादा होती है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा होती है सारी बट चीज़ों डू की। यू थिंक कि अगर बच्चा बीमार होता है तो उसमें मतलब बिकॉज जेन्युइनली अगर ये सोचा जाए कि बच्चा बीमार, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग, जिस तरह बाकी लोग बीमार हो सकते हैं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ना, दैट मैटर्स अ लॉट। वर्क प्लेस के ऊपर भी अगर ये जेन्युइनली इस चीज़ की रिकग्निशन हो के मतलब जब किसी फीमेल जो ऑफिसर कहीं पर भी काम कर रही है, उसको अगर किसी कोई टाइम ऑफ चाहिए, so she is genuinely the prime person for that responsibility. Have you ever witnessed कि आपके कभी कोई मेल काउंटर पार्ट्स में से कोई बच्चा बीमार है तो उसके लिए छुट्टी लेके जा रहे हो कि जी मैंने उसको डॉक्टर को दिखाना है? नहीं लेकर जाते हैं, होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लेकर जाते। अगर बच्चा कॉन्स्टेंटली अगर काफ़ी 3, 4, 5 दिन बच्चा बीमार है, तो अब हम अगर स्पेशली हमारी जुडिशरी में ऐसा ही होता है कि वो फिर हस्बैंड और वाइफ दोनों डिवाइड करके छुट्टी करते हैं। एक दिन अगर मदर ने कर ली है, तो फादर भी छुट्टी करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बच्चों को नहीं, मैं मैडम इस चीज़ की बात कर रही हूँ कि जो है ना, जब आप में प्राइमरी केयर गिवर जो है ना, प्राइमरी केयर एक ही होता है, प्राइमरी केयर गिवर 2 नहीं हो सकते हैं। जब बच्चा पहले दिन बीमार होता है, मैं 3 और 4 दिन की बात नहीं करी, मैं इस चीज़ की बात करी हूँ बिकॉज़ we have seen कि women internalize these concepts from their environment, कि वो ये समझती हैं मदर बिकॉज़ की तो कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं ना मदर की, उसको तो आपको पता है कि हर हाल में अवेलेबल रहना ही है फॉर चिल्ड्रन। नहीं, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज़ ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपको पता है ना जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, तो ये हमारी सोसाइटी का कंस्ट्रक्ट है। अदरवाइज तो आप देखें वेस्ट में जो प्राइमरी केयर गिवर है, जब वहाँ पर वो सारी इक्वालिटी और उसकी जब वो बात करते हैं, तो वहाँ पर वो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग होती है। ऐसे नहीं होता कि 90% बोझ एक बंदे के ऊपर है और 10% आप। मेरा आपसे ये बेसिकली डिस्कशन करने का मकसद ये है कि ज़्यादातर जब हम फीमेल ऑफिसर से इंटरेक्ट करते हैं, वो समझते हैं कि 90% रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है। बेसिकली उन्होंने इसको इंटरनलाइज किया हुआ है। तो जब वो खुद ही अपने लिए ये मेयार तय उन्होंने कर लिया है कि 90% रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, तो जाहिर बात है 10% तो फिर उनके साथ जो मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली वो तो कर ही रहे हैं, और उसमें से भी सब 10% नहीं कर रहे होंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब आप खुद एक अपने चैलेंज को रिकग्नाइज नहीं करते, तो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको रिकग्नाइज करेगी। तो इसलिए आपको पहले अपने लेवल पे इसको रिकग्नाइज करना जरूरी है कि यू आर डूइंग मोर देन एनीबडी एल्स इन योर फैमिली। ऑब्वियसली वो तो है जी। तो जब आप खुद के लिए सोचेंगी ना, देखिए यू आर सच अ सीनियर लेवल, आप अगर अपने लिए सोचेंगी, जब आप जिस दिन आप अपने लिए सोचना शुरू करेंगी ना, तो यू विल स्टार्ट थिंकिंग ऑफ अदर वुमेन एंड यू विल ट्राई कि जी आई शुड स्टेप अप एंड वी मस्ट कम अप विद अ पॉलिसी, जिस तरह पूरी दुनिया में डेवलप्ड वर्ल्ड में होता है कि वो एक कंड्यूसिव वर्किंग एनवायरनमेंट देते हैं खवातीन के लिए। इट इज नॉट फ्राउंड अपॉन। अगर बच्चा बीमार हो गया तो वो 2 से 3 दिन अगर आपको छुट्टी लेनी पड़ गई है, तो ऐसे नहीं होता कि वो समझे कि जी आपका दिल उचाट हो गया, आप नौकरी करना नहीं चाहते हैं या आप सीरियस नहीं अपने काम के बारे में। सिर्फ ये होता है कि जाहिर बात है, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आई एम श्योर कि आई एम मेकिंग अ पॉइंट हियर कि अगर आप 90% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं बिकॉज ऑफ योर जेंडर रोल, तो फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी 90% ना सही कुछ रिकग्निशन तो होनी चाहिए ना कि आप यू आर शोल्डरिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ वुमन। आई एग्री, पर वो जी। जो माइंडसेट है, अब वो जो रिजिड माइंडसेट है वो कुछ एक्सटेंट तक अब चेंज होता जा रहा है। जी हमारा जी जो बिल्कुल। इन्वायरमेंट है, जो सेटअप है, वो अब बहुत हद तक चेंज हो गया है। बहुत ज़्यादा औरतों को जो है वो देते हैं, हर किस्म से जो है फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं जी। काम के लिहाज से। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। these things have changed with the passage of time और वो चेंजेस हम
a matter of policy that they have changed or the societal behavior has changed? मैं ये कहती हूँ हर डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जो है वो पॉलिसी जो है वो चेंज होती है, हर डिस्ट्रिक्ट की अलग पॉलिसी होती है, वो हर It's not institutional. It is डिस्ट्रिक्ट basically आपके सीनियर पे डिपेंड करती है. जी जी जी. तो what I'm saying is कि जब पॉलिसी होती है तो फिर आपकी चीजें इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होती हैं. जरूरी नहीं कि आपका बॉस जेंडर सेंसिटिव होगा, वो आपको स्पेस देगा. जब पॉलिसी होती है तो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है कि उसने स्पेस देनी ही देनी है जहां पर फीमेल काम कर रही हैं ऑफिसर्स जो हैं. जी सर अजीज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं बस यही कहना चाह रहा था कि ऑब्वियसली हमारे सोशल जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनकी वजह से फीमेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने बाय बर्थ जो है वो ज़्यादा ही देखी है. ऑब्वियसली इसको थोड़ा बहुत जो है वो शेयरिंग होना चाहिए, चेंज भी होना चाहिए, और इसको अब मेरे अंदाजे के मुताबिक तो रिकॉग्नाइज किसी हद तक किया जाता है, और अगर जहाँ नहीं किया जाता वहाँ पर रिकॉग्नाइज होना चाहिए इस चीज़ को. जी. What I'm trying to say is कि फॉर एग्जांपल सर अजीज, आप जहाँ पर भी अभी पोस्टेड हैं और आपके पास कोई आप पॉलिसी ऐसी बना सकते हैं आप जहाँ पर बिकॉज जब हम इसको हम कहते हैं जेंडर लेंस, जब आप किसी चीज़ के ऊपर जेंडर लेंस लगा के देखते हैं और आप रिकग्नाइज करते हैं, फिर आपकी पूरी कोशिश होती है कि आप उसको स्पेस दें कि वहाँ पर इसको रिकग्नाइज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप एक ऐसी वहाँ पर अपने एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर आप एक ऐसी पॉलिसी, एक जिस तरह से ये मैडम कह रही थी कि जी इनको काफ़ी सारी जगहों पर फ्लेक्सिबिलिटी और वो मार्जिन मिल जाता है. लेकिन फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ बिकॉज अगर आप लोगों के जो पुलिस ऑफिसर के साथ इंटरेक्शन रहता है, आपने देखा भी होगा, आपके वर्क प्लेस जो है कॉलीग्स के अलावा भी आपने देखा होगा, तो जहाँ पर बहुत जो अर्जेंट नेचर की फर्स्ट रिस्पॉन्स नेचर की जो जॉब्स हैं, डॉक्टर्स हो गए जो कि पब्लिक सेक्टर में है, पुलिस हो गई, वहाँ पर मार्जिन वैसे ही बहुत कम है, वहाँ पर मेल ऑफिसर्स के लिए भी मार्जिन बहुत कम है. तो ऐसी स्पेसेस के अंदर मार्जिन क्रिएट करना और ऐसा मार्जिन क्रिएट करना विच इज ट्रेंड सेटिंग, दैट इज वेरी नेसेसरी, सो दैट अगर आपके सिंध में लेट से 36-37 अजला हैं और उसमें से सिर्फ 10 अजला हैं जो कि थोड़ा सा प्रो विमेन है या विमेन सेंसिटिव है, जो आपके अर्बन सेंटर्स है, इसका मतलब है कि हमें इसको 10 से पहले 20 पे ले जाने की जरूरत है और 20 से चंद एक रह जाए कि जो जिसमें आपको लगे कि जी फीमेल को चैलेंजेस आ रहे हैं. उसका फायदा ये होगा कि आप भी एज मेल लीडर्स यू वुड बी एनेबलिंग देम. उससे ये होता है कि जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्लरिश करती है और आपके पास जो विलिंग वर्कर्स है वो आपके पास ज़्यादा आ जाते हैं. और जब आप उनको आई हैव ऑलवेज सीन के एक्सेप्ट फॉर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन फीमेल आपकी जितनी भी कैपेसिटी में जब काम करी है तो हमेशा अपने कैपेसिटी से ज़्यादा काम करती हैं. तो इसलिए अगर उनका ड्यू शेयर आप जब उनको देते हैं तो वो उसको एक्नॉलेज करती हैं, वो उसको समझती है हमें फेवर दे रहे हैं. दिस इज ऑल्सो समथिंग टू बी told to your junior colleagues, female colleagues, and to your colleagues कि this is not a favor that you are extending to them, this is their right. तो जहाँ राइट्स होती हैं, ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमारे सोसाइटल रोल्स जो हैं वो हम इन जेंडर्ड रोल्स के साथ पले बड़े हैं, लेकिन इसको चेंज करना भी हमारी जिम्मेदारी है, ये कोई बाहर से आके नहीं चेंज करेगा. तो इसलिए जब हम अपने अपने इदारों के अंदर उसको चेंज करेंगे तो डेफिनेटली ये जो शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरह से अभी मैडम कह रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, I still look forward to that time जहाँ पर इस तरह की इक्वालिटी होगी. जिस तरह मैंने आपको बताया कि बाहर ये रिकग्निशन होती है कि मैटरनिटी लीव के बाद 6 माह जो है वो फादर को भी देते हैं, वो प्रॉपर अप्लाई करते हैं और उन 6 माह के अंदर मदर अपना फुल फोकस के साथ अपने जो भी किसी प्रोफेशन को अगर उसने ज्वाइन किया हुआ है वो उस पर तवज्जो देती है, और जो फादर्स हैं वो 24 आवर्स वो बच्चे को टाइम देते हैं. सो आई थिंक कि इसमें आई नो कि पीपल हैव रेजर्वेशंस, लेकिन सोसाइटी के अंदर आपको पता है कि वो डिफरेंट ट्रेंड्स हमेशा चलते रहते हैं. लेकिन यू बीइंग लीडर्स, अब आप अगर देखिए तो आप लोग सारे यहाँ पे जो जजेस बैठे हुए हैं पूरे मुल्क में कितने जजेस होंगे, कितने सिविल जजेस होंगे? लाखों में तो नहीं होंगे, चंद हजारों में ही होंगे. इसका मतलब है कि यू आर लीडर्स इन योर ओन कैपेसिटी और इंशाल्लाह यू आर डेस्टिन्ड टू राइज. आप लोगों ने हाई कोर्ट और फिर उसके बाद जाके सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनना होगा. यू आर द फ्यूचर लीडर्स. तो अगर आज आप किसी डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, इट विल हैव द इम्पैक्ट, यू विल बी राइटिंग द फ्यूचर फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल योर इमीडिएट सराउंडिंग एंड देन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. जी मैडम सादिया. हाँ जी, मैं थी टॉपिक बहुत उसमें आगे निकल गया, लेकिन मैं उसमें ये ऐड करना चाह रही थी कि डोमेस्टिक लेवल में तो हमारी मेंटालिटी बहुत तब्दील हो चुकी है. जैसे मैडम ने कहा कि हमें हमारे हस्बैंड्स हेल्प करते हैं घरों में खवातीन को, और जिनके इन लॉज, मेरा तो खैर नहीं है, ना मेरी मदर साइड से, मेरी मदर भी नहीं है, मेरे हस्बैंड की भी मदर नहीं है हयात, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए.
मगर ये कि प्रॉब्लम है कि जब हम ऑर्गेनाइजेशंस में जो काम कर रहे होते हैं, मैडम ने शायद फ्लेक्सिबल किए कुछ जगह मिली होंगी, मगर मैंने तो बड़ा हार्श बहुत मैंने देखा कि बहुत हार्शली डील किया गया जी, मुझे। दिस इवन इज व्हाट अगर आई एम मुझे आप सेइंग। इजाजत दें और जी, मैं जी, बहुत बोल्डली होके बता सकूं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इवन वेल आई वाज अंडर प्रोसेस अबॉर्शन और मैंने जी, लीव अभी अर्न लीव फॉरवर्ड की गई तो उसको अनरिकमेंडेड करके हाई कोर्ट जी, भेजा गया बिल्कुल। और मैडम जो मेरी आपने बात कही है ना, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स के साथ। जी, और आई जब नो, मैं कहती आई हूँ नो। कि सर हाँ मेरे बच्चे हैं, तो आगे से मेल कलीग जो है और इवन सीनियर से का एक कमेंट आता है कि सर हमारे भी तो बच्चे हैं। जी, बिल्कुल। तो एक मैं डिफरेंस है, एक माँ का और जी, बाप का रोल स्लाइटली डिफरेंट है, खासतौर पे अगर बच्चों की एज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बच्चे छोटे हैं तो माँ का रोल घर में ज्यादा होगा, अगर बच्चों की एज थोड़ी सी बड़ी है तो फिर बाप की अटेंशन थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आई वुड स्टिल beg to differ, बिकॉज मैं आपको एग्जांपल वो भी इसी मतलब पूरा अर्ज पे वो भी ह्यूमन बीइंग्स ही जो रहते हैं, और आपने देखा है कि वो डिसिप्लिन वाइज उन कौमों का हमसे डिसिप्लिन भी बहुत बेहतर है, और उनकी तरक्की भी हमसे मतलब हम तो मटेरियल उसकी ग्रोथ की बात करते हैं ना, लेकिन ये कि वहाँ पर उन्होंने भी क्योंकि जेंडर्ड रोल उन्होंने पिछले 40-50 सालों में अपने जेंडर्ड रोल्स के ऊपर काम किया है, और उसमें फ़ायदा ये होता है कि जो आपका जो फैमिली का होता है, मैं आगे जाके आपसे ये बात करूँगी, बिकॉज़ आपने ये जिस तरह ऑब्जर्वेशन दी है, हम हमेशा अपने लीडरशिप रोल्स के अंदर ये भी करते हैं कि आप एक्सेप्शंस पे नहीं जाते, आप मेजॉरिटी के ऊपर जाते हैं। तो जो आपने बात की है ना कि जहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिली, आपके जो वर्क एनवायरनमेंट के अंदर आपको स्पेस नहीं मिली, ये दिस इज व्हाट मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन फेस इन देयर वर्क प्लेसेस। एक्सेप्शंस आर देयर, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, मतलब मैं अपने 14 इयर्स के करियर में मैं भी आपको बता सकती हूँ कि एग्जैक्टली, शायद सॉरी टू इंटरप्ट यू मैडम, जी, मगर जी। मेरा यहाँ पे ऐड करने का मकसद ही यही था कि हम खवातीन भी एडमिट करते हुए पसंद नहीं करती कि हमें आगे से हार्डशिप मिलती है और हम हमारे साथ जी, लोग जी, इतना बिल्कुल। एडजस्ट नहीं टोटली करते। एग्री। हम लोग सबकी सब खवातीन नहीं कहती, नहीं जी हमारे साथ घर में जी, भी जी। बहुत अच्छा है, सास बच्चों को ऐसे ही है। संभाल लेती है, ऑफिस में भी बहुत अच्छा है, जी, सीनियर जी। बहुत अच्छा है, बॉस बहुत अच्छा है, बट एक्चुअली ये है नहीं। हाँ, और हमें ऐसे जो है करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज़ मैं बता रही हूँ ना कि गॉन आर द डेज़, क्योंकि अब वुमेन आर देयर इज़ हार्डली एनी फील्ड लेफ्ट जहाँ पर ख़वातीन नहीं है। तो होता ये है कि हर सोसाइटी के अंदर 2-3 फ़ेजेज़ होते हैं। पहला फ़ेज़ ये होता है कि जी पहले तो आप स्टीरियोटाइप्स को तोड़ें और ख़वातीन जो है वो उन प्रोफ़ेशंस में आएँ। जब वो आ जाती है तो डाउन द लाइन फ़ेज़ 2 ये होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता वो रिकॉग्नाइज़ करवाना शुरू कर दें कि देयर इज़ अब आप देखें कि बहुत सारा देयर इज़ दिस टॉक ऑफ अनपेड लेबर। अब जो घर में ख़वातीन, अब ऐसा तो नहीं कि जो वर्किंग वुमेन है वो घर में कुकिंग नहीं करती हैं, वो घर में आयरनिंग नहीं करती, वॉशिंग नहीं करती, सारे काम करती हैं, ठीक है? और फिर उनके मल्टीपल लेवल्स पे एंगेजमेंट है। दिस इज़ ऑल अनपेड लेबर। व्हाटएवर दे अर्न, आपको पता है, मतलब आई ऑलवेज़ टॉक अबाउट स्टीरियोटाइप्स, उसमें स्टीरियोटाइप ये भी होता है कि जी वो तो वर्किंग वुमन है, वो तो घर को टाइम ही नहीं देती है, वो वर्किंग वुमन है, उसके तो बच्चे ही बिगड़े हुए हैं, उसके तो बच्चों को टाइम ही नहीं मिलता है। मैं ये बता रही हूँ कि ये सब बातें जो आपको नेगेटिव फीडबैक वर्कप्लेस से भी मिल रहा होता है, फैमिली से, एक्सटेंडेड फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव से, ये आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। और हमारे तो क्योंकि बहुत चैलेंजिंग काम है पुलिस का, वी हैव गॉन ओवर इन द लास्ट 10 इयर्स टू अ लॉट ऑफ सुसाइड्स, क्योंकि जब मेंटल हेल्थ इश्यूज अनअटेंडेड रहते हैं तो फीमेल ऑफिसर्स जो है वो इतना ज्यादा दे आर ओवरवेल्म्ड, आल्सो मेल ऑफिसर्स। हमारा ये जो ऑफ ट्रेंड कोर्स मैं ऐड करूंगी यहाँ पे, डेली बेसिस पे अगर मेरी मेड मौजूद नहीं है तो डेली बेसिस जी, पे मुझे टॉर्चर से गुजरना पड़ता है कि मैं कोर्ट जी, कैसे जाऊँ। बिल्कुल, बिल्कुल। डेली तो बेसिस देखिए के आपका ऊपर जो है सपोर्ट खवातीन डील कर मैकेनिज्म जो रही है, हैं। जी, बिल्कुल, आपका सपोर्ट मैकेनिज्म, सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। और अगेन आई थिंक दिस इज मैडम सादिया टॉकिंग। जी मैं सादिया। जी, जी। तो मैडम ये अब आप देखें कि आप हाउ एम्पावर्ड यू आर। आप किसी दूसरे की नज़र से देखें तो वो शायद विश करेगा कि जी मेरी बेटी जो है इस पोज़ीशन पे बैठी हो। तो अब आप ये देखें कि यू आर बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, ऑल द एम्पावर्ड वुमेन, वो एक अच्छी प्रेस्टिजियस पोज़ीशन पे बैठने के बावजूद उनको देखें, आउट ऑफ 220 मिलियन कितने ख़वातीन होंगी जो सिविल जजेस होंगी? चंद हज़ार ही होंगी ना, या चंद 100 होंगी जिनमें से आप एक हैं। अगर आप ये सोचें कि आपको ये चैलेंजेस फेस करने पड़े तो उस 50% आबादी का कौन सोच रहा है? उनके बारे में किसका कौन देख रहा है कि उनको क्या चैलेंजेस हैं और वो उनके चैलेंजेस को कोई एड्रेस कर रहा है कि नहीं? दिस टाइम दिस गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोबेबली दे ऑन द 8th ऑफ मार्च दे लॉन्च जेंडर पॉलिसी। आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगी, इवन द मेल पार्टिसिपेंट्स के, गो थ्रू दैट जेंडर पॉलिसी। जो डेवलप्ड वर्ल्ड में हमेशा जो कौमें आगे हैं उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि उनके सब इदारों की अपनी अपनी एक जेंडर पॉलिसी होती है। उसका सिर्फ एक मकसद ये होता है कि इक्वल पार्टिसिपेशन। जब हम खवातीन से घर में सारे काम ले रहे हैं, जब वो घर में सारे काम कर रही हैं, वो अनपेड लेबर, सारी जो सर्विसेज, बेसिकली सारी सर्विसेज होती हैं, वॉशिंग, क्लीनिंग, आयरनिंग, रेयरिंग किड्स। अगर आपको अपने बच्चों को रेयर अप करने के लिए एक नैनी हायर करने पड़े, एक मेड हायर करने पड़े, तो आपको 20, 30, 40 हज़ार डिपेंडिंग ऑन आपको देने ही पड़ेंगे ना। बट दिस इज अनपेड लेबर दैट दे आर डूइंग।
तो अगर हम रिकग्नाइज एम्पावर्ड वेमेन उसको रिकग्नाइज नहीं करती तो फिर उनके लिए तो कोई वो वॉइसलेस है, वो किसी खाते में नहीं है, उनका कोई डाटा नहीं है, वो नंबर्स भी नहीं है, वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती वो खवातीन। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आई एम श्योर कि आपके पास कोर्ट में भी लोग इस तरह के आते होंगे जो कि यू नीड अ लॉट ऑफ रिलीफ, सो यू नीड टू बी देयर लीडर्स। तो आप पहले अपने लीडरशिप के रोल में आए, देन यू वुड बी एबल टू। हमेशा ही कहते हैं ना कि जब आप डूब रहे हो तो पहले आप अपने जो है वो लाइफ जैकेट पहने, फिर ही आप किसी को बचा सकते हैं। सो व्हाट वी आर लुकिंग एट इज मेकिंग women leaders so that the organizations grow and then the women inside those organizations grow and largely जो है society में women के लिए conducive working environment हो। अब दिस इज जस्ट समथिंग हम ब्रीफली इसको कर लेते हैं, इंडिविजुअल एक्सरसाइज है। अगर आप पिछली स्लाइड पे हम जाएंगे और आप ये देखिए कि प्रायोरिटी लिस्ट में कौन ज़्यादा है जो आपकी रेजिलियंस डिमांड करता है। किसी का नंबर 1 कुछ होगा, किसी का जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है। ये ज़रा आप पीछे जाइए और इसमें आप देखिए सब इंडिविजुअली कि आपको रेजिलियंस की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा जो है वो किन चीज़ों में आती है। नंबर 1 जो है वो आपको स्ट्रेसफुल कंडीशन के लिए रेजिलियंस ज़्यादा चाहिए होती है, या जो काम का प्रेशर और चैलेंज है उसके लिए ज़्यादा चाहिए होती है, या लोगों के स्ट्रेस को डील करने के लिए ज़्यादा, बिकॉज इट वुड बी डिफरेंट फॉर एवरीवन। तो क्विकली आप जरा इसका 1 2 3 4 5 ऑर्डर बना लें एंड whoever डज इट फर्स्ट तो शेयर कर लें क्लास के साथ। जी सर अजीज आप करना चाहते हैं? फर्स्ट तो मेरे नज़दीक यही है कि डीलिंग विद अदर पीपल्स स्ट्रेस, मतलब सबसे बड़ी तो हमें यही होती है कि जिस तरह डिस्कस पहले आपने भी किया है कि हमें पता होता है बहुत सारी चीज़ों का कि ये इस तरह है, इसके साथ ये ज्यादती हुई है, लेकिन चूंकि हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेस पे चलते हैं या हमारे पास जो भी एविडेंस आता है ओरल या डॉक्यूमेंट्री उसकी बुनियाद पे, तो हम लोगों को कुछ लिमिटेशंस के अंदर रहकर जो है वो अपने डिसीजंस देने होते हैं। तो वो जो स्ट्रेस होता है उसके अंदर ये मेरा ख्याल है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉर एनी ऑफ द जजेस जो है ना वो यही होगा। उसके अलावा फिर सेकंड पे स्ट्रेसफुल कंडीशंस आ जाती हैं, हमारा एटमॉस्फेयर इतना कोर्ट्स का अच्छा नहीं होता है, आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं इस बात को। और उसके बाद फिर थर्ड पे प्रेशर एंड चैलेंज आ जाता है, और फोर्थ पे वर्किंग विद विक्टिम्स आ जाता है, और फिफ्थ पे सस्टेन इंटरेस्ट एंड एफर्ट टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म गोल्स आ जाता है। थैंक यू। कोई और शेयर करना चाहेगा? जी मैडम सादिया। जी, प्रेशर एंड चैलेंजेस नंबर 1 पे है मेरे हिसाब से, नंबर 2 पे स्ट्रेसफुल कंडीशन है, नंबर 3 पे डीलिंग विद अदर पीपल्स स्ट्रेस, फिर वर्किंग विद विक्टिम्स एंड लास्ट में सस्टेन इंटरेस्ट एंड टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म गोल्स। थैंक यू। Now this is sort of we are going towards the wrap up of जो हम resilience की काफ़ी देर से बात कर रहे हैं, जो generally हम domains identify करते हैं resilience की, वो 6 हैं जिसके अंदर आपका vision है, purpose, goals and congruence. By congruence we mean कि जो आपका purpose goal है सब align हुए होने चाहिए, एक उनकी direction होनी चाहिए। Composure जो है that is also one ingredient of resilience के regulate emotions। ये हमारे लिए इसलिए बहुत रेलेवेंट है बिकॉज आप जब अपना कोर्ट प्रोसीडिंग्स का काम कर रहे होते हैं, हम जब अपना तफ्तीश का काम कर रहे होते हैं, हमें क्लियरली नज़र आ रहा होता है कि एक बंदे ने उसके साथ ज्यादती की हुई, और हम समटाइम्स इट इज़ वेरी हार्ड फॉर अस टू कंट्रोल आवर इमोशंस। ख़ास तौर पे जब हम देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस औरतों के खिलाफ देखते हैं, बच्चों के अब्यूज़ के केसेस देखते हैं, कुछ बाज़ औक़ात मारपीट कैसे होते हैं जिसके अंदर बुजुर्ग शहरी जो होते हैं उनको बहुत मारपीट की गई होती है, तो we sort of tend to lose our temper। तो इसलिए कंपोजर जो है वो रेजिलियंस, जब आपकी रेजिलियंस बेहतर होगी उतना अच्छा आप अपने आपको जो है ना एक बैलेंस पे मेंटेन कर सकेंगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकेंगे। बाज़ औक़ात आप अपने जो गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, बाज़ औक़ात आप अपनी किसी की बाज़ औक़ात जिस तरह मैंने बात की है कि जब आप किसी की स्ट्रेसफुल सिचुएशन को एक्सपोज होते हैं तो यू फील वेरी सैड अबाउट देम, और वो आपको उसके बाद आप कोर्ट से घर भी आ जाते हैं, दफ्तर से घर भी आ जाते हैं, एंड you keep reminding yourself कि जी वो इसका मसला नहीं हल हुआ, तो आपको वो आप उसी एक फेज में चल रहे होते हैं। बाज़ वक़्त आपको डेस्पेयर फील होता है कि मैं इसके लिए कुछ कर नहीं सक रहा या कुछ कर नहीं सक रही, और हालांकि आपको पता होता है कि जी वो डिजर्विंग है जो कोई विक्टिम है, लेकिन उससे जो है यू टेंड टू लूज योर यू कैन नॉट कंट्रोल योर इमोशंस। इंटरप्रिटेशन बायस होता है, जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते तो इंटेंशनली यू आर टेकिंग साइड्स। तो वो आपके काम को, जब आप इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हैं किसी भी कैपेसिटी में, क्रिमिनल जस्टिस में, उसके अंदर अगर बायस आ गया, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट योर जजमेंट।
तो इसलिए जजमेंट के लिए मैं फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो पुलिस जिस वक्त अपना केस बना रही होती है कोर्ट के लिए, तो उस वक्त बायस वहाँ पर भी इट क्रीप्स इन, और वहाँ पर भी आपको जहाँ पर नजर आता है वो आप जितना मर्जी कोशिश करें, जब तक बायस के लिए आप इंटेंशनली उसको यू आर नॉट वॉचिंग आउट फॉर द बायस, वो आपके पास आ जाता है जहाँ आपको नजर आ जाता है कि जी एक ज्यादती हुई है। तो अगर आप समझते हैं कि जी इसके साथ ज्यादती हुई है, तो आप अनकॉन्शियसली उसका विक्टिम का साइड लेना शुरू हो जाते हैं, आप एविडेंस को और जो फैक्ट्स हैं उनको ओवरलुक करना शुरू हो जाते हैं। अल्टीमेटली दैट अफेक्ट्स द होल जजमेंट। तो इसलिए रेजिलियंस इसलिए भी ज़रूरी है कि आपने इतनी ज़्यादा सेंसिटिव डिसीजन मेकिंग करनी होती है, तो आपका काम कंट्रोल बायस नहीं होना चाहिए और आप इमोशंस को रेगुलेट कर सकें। रीजनिंग होनी चाहिए। रीजनिंग के जो डोमेन्स आते हैं उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर आपकी रेजिलियंस नहीं होगी, आपकी कैपेसिटी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग विल बी वेरी लेस। होता ये है कि जब हम मीटिंग्स में भी बैठते हैं, हमारे डिफरेंट मसाइल डिस्कस हो रहे होते हैं, तो आपने देखा है कि कुछ हमारे मसाइल पिछले 70 सालों से वही हैं, इसलिए क्योंकि हमारी अप्रोच फ्लॉड है। हम उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ नहीं जाते, हम मसाइल तो सारे लेके आ जाते हैं, लेकिन उसको हल कैसे करना है हमारे पास उसके जो है वो सोल्यूशंस नहीं होते। तो जब आपकी रेजिलियंस बेहतर होती है तो आपकी पॉजिटिविटी जो है स्टार्ट वर्किंग, एंड देन यू आर एबल टू अप्रोच थिंग इन अ डिफरेंट मैनर। कि अगर एक आप समझते हैं कि जी एक डायरेक्शन में एफर्ट करने से मसला हल नहीं हो रहा, तो आप सोचते हैं कि इसका और क्या तरीका हो सकता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो आपकी बेहतर होती है अगर आपकी रेजिलियंस बेहतर होती है। रिसोर्सफुलनेस आपकी बेहतर हो जाती है। हम रिसोर्सफुलनेस समझते हैं कि जी रिसोर्सफुलनेस का मतलब है कि बहुत सारे पैसे, बहुत सारा बजट, बहुत सारी गाड़ियां और बहुत सारे ऑफिसेज। दैट्स नॉट रिसोर्सफुलनेस। रिसोर्सफुलनेस मीन्स के आपके जितने भी गिवन रिसोर्सेज हैं उसके अंदर आप एफिशिएंटली कैसे आउटकम दे सकते हैं, कैसे रिजल्ट दे सकते हैं। एंटिसिपेट एंड प्लान। जब रेजिलियंस नहीं होती तो माइंड की जो कैपेसिटी है टू फोरसी इनटू द फ्यूचर वो खत्म हो जाती है। आप सिर्फ एक डे टू डे फायर फाइटिंग मोड में चल रहे होते हैं। तो इसलिए भी रेजिलियंस इंपॉर्टेंस है। आपकी रेजिलियंस अच्छी होगी तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी। न्यूट्रिशन, स्लीप, एक्सरसाइज, ये सारे रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए आपको हेल्प करते हैं एंड दे गो बोथ वेज। टेनेसिटी आपकी बेहतर होती है। परसिस्टेंस, आप रेजिलियंट होते हैं तो आप बहुत देर तक भी एक चैलेंज के साथ लड़ सकते हैं। आपको पता होगा कि जी आपका किसी भी तरह का चैलेंज है वर्क प्लेस का, तो आप कंसिस्टेंटली करते रहेंगे। आप यू माइट फेल टाइम एंड अगेन बट यू वुड नॉट गिव अप। तो ये भी डिपेंड करता है। आपने देखा होगा अपनी लाइफ में, जब आप अपने आप को देखें, अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें कि कुछ लोगों की बड़ी जल्दी वो गिव अप कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमसे नहीं हो रहा तो अब हम छोड़ देंगे इसको। लेकिन कुछ लोगों की जो है वो ज़्यादा परसिस्टेंस ज़्यादा होती है और वो लगे रहते हैं जब तक जो है ना अपनी फेलियर्स के ऊपर वो अपनी सक्सेस को बिल्ड नहीं कर लेते। रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म होता है। कैन समवन टेल मी कि रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म और ऑप्टिमिज्म में क्या फ़र्क होता है? बहुत कोई खास मतलब फ़र्क नहीं होता, लेकिन ये कि कुछ लोगों को ऑप्टिमिज्म ये होता है कि जी हम लाइफ जैकेट के बगैर भी अगर पानी में कूदेंगे और हमारे पास रियलिस्टिक जो है वो थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिकल होती है। जी बिल्कुल। मतलब ऐसे नहीं है कि आपको स्विमिंग भी नहीं आती, आपने लाइफ जैकेट भी नहीं पहनी हुई तो आप कह रहे हैं कि नहीं जी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। ये ऑप्टिमिज्म इज फूलिश ऑप्टिमिज्म। रियलिस्टिक ये होता है कि जी आप अपनी तैयारी करें और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करें कि जी एवरीथिंग विल टर्न आउट फॉर गुड। और वही जो हमने बाउंस बैक की बात की है वो भी रेजिलियंस के अंदर जो है, फिर आपकी जब रेजिलियंस बेहतर होती है तो यू बाउंस बैक फ्रॉम एनी चैलेंज दैट यू कन्फ्रंट इन योर पर्सनल लाइफ और एट योर वर्क प्लेस। कोलैबोरेशन, ये हम आगे जाके आने वाले दिनों में बात करेंगे कि नेटवर्किंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है रेजिलियंस के लिए। अब आपने शायद फील किया हो कि जो पिछले 1-1.5 घंटे से हम बात कर रहे हैं उसमें शायद आपको ऐसा फील हुआ हो कि मैं अपनी इस सारी स्ट्रगल में, अपने इस कन्फ्रंटिंग द चैलेंजेस में आई एम नॉट अलोन। ये बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स। अगर उनको ये लगे कि मैं किसी फाइट में तनहा रह गया हूँ, मैं अकेला हूँ, ये सिर्फ मुझे ही इस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो बहुत जल्दी डेस्परेट हो जाता है, वो बहुत जल्दी गिव अप कर जाता है। लेकिन जब उसको लगे कि बाकी भी तो लोग हैं, बाकियों के पास भी तो इसी तरह के चैलेंजेस हैं, बाकी लोग भी तो इसी तरीके से कोप अप कर रहे हैं, बाकी लोग भी तो मुस्कुरा के अपना वक्त गुजार रहे हैं और अपने गोल्स के पीछे जा रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू अचीव हायर गोल्स, तो फिर नेटवर्किंग आपको वहाँ फायदा देती है। जब आप लोगों से बात करते हैं, जितना आप इंटरेक्ट करते हैं, हमारी पब्लिक सर्विस में, खासतौर पर क्रिमिनल जस्टिस में, हमारे लिए नेटवर्किंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है बिकॉज जनरली पीपल डोंट टेल अस बट दे आर अफ्रेड ऑफ अस। वो हमारे तो खैर मुंह पे ही कहते हैं कि जी पुलिस वालों की तो ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है। आई डोंट नो कि जजेस के बारे में कोई अगर ऐसे क्लीशेड हैं तो ज़रूर मुझे बताएं, इट वुड ऐड टू माय लर्निंग, बट आई डोंट नो कि लोग बहुत खुशी से जजेस के साथ दोस्तियां और रिश्तेदारियां करते होंगे कि नहीं। I don't know. I think we are the worst in the criminal justice probably. But ये इसकी वजह से नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज देन यू कैन सी कि जो है ना आप अपने बहुत सारे चैलेंजेस और फाइट्स के अंदर यू आर नॉट अलोन।
सोशल कॉन्टेक्स्ट भी एक होता है। अगर आप एक, आई एम श्योर कि हमेशा जज जो है वो दूसरे जज की जो मसाइल हैं उसको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर सकेगा, तो वो सोशल कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करना बड़ा ज़रूरी होता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप यू गो टू योर पेरेंट्स, यू गो टू योर स्पाउस, यू गो टू योर रिलेटिव्स, योर सिबलिंग्स, आप उनको अपना कोई स्ट्रेस बताते हैं तो वो उसको अंडरस्टैंड, वो चाहते हैं कि वो आपके साथ एम्पैथाइज करें, बट दे आर नॉट इन अ पोजीशन। तो इसलिए सोशल कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उस सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है, जब आप अपने, फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे अभी कोई बताएंगे कि जी हमें कोर्ट में ये मसाइल होते हैं, या लोग आते हैं वो झूठ बोलते हैं, गवाह भी झूठ बोल रहे होते हैं, मुद्दई भी झूठ बोल रहा होता है, जो तफ्तीशी है वो भी झूठ बोल रहा होता है, तो आई विल कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आप किसी मीडिया वाले को बताएंगे तो वो कहेंगे कि जी ये तो आप उज़्र लंग पेश कर रहे हैं ताकि आपको ना काम करना पड़े। So, you know, collaborations, networking with the right people in your professional life, that always helps you with your professional goals. And then you also manage perceptions. जब आप को अंदाजा हो जाता है कि आपके चैलेंज क्या है, तो फिर शेयर्ड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, नेटवर्क्स के ऊपर आप अपनी परसेप्शंस को भी ठीक कर सकते हैं। आई एम श्योर कि सारे जब लोग बात करते हैं, सारे मीडिया वाले बुरे नहीं होते, सारे लॉयर्स बुरे नहीं होते, सारे जजेस बुरे नहीं होते, सारे पुलिस वाले बुरे नहीं होते। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक रीजनेबल नंबर ऑफ पीपल होता है जो कि हु आर गुड एंड हु आर बैड। हमारे बहुत बहस होती है, हमारे जिस वक्त कमेटियाँ वो बनती हैं तो हमारे आईजीज कहते हैं कि जी आप किसी लॉयर को भी डाल लें, तो सारे कहते हैं कि नहीं जी, वो हमारे अपने बायसेस भी होते हैं। लेकिन नेटवर्किंग का हमेशा ये फ़ायदा होता है कि जब आपके पास डिफरेंट चैलेंजेस और सिचुएशंस आती हैं, तो आप फिर जितने ज़्यादा आपके पास कम्युनिटी की एंगेजमेंट ज़्यादा होती है, आपके डिसीजंस बेहतर होते हैं, आपका सपोर्ट मैकेनिज्म बेहतर होता है। तो रेजिलियंस के लिए जहाँ आप विजन, कंपोजर, रीजनिंग, हेल्थ और टेनेसिटी को देख रहे हैं, वहाँ बिल्कुल मत भूलिए कि आपका अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ प्रोफेशनल नेटवर्किंग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप ये करेंगे तो आपका प्रोफेशनल आउटलुक भी बेहतर होगा, आपकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ भी बेहतर होगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल इज दैट यू विल नॉट फील अलोन। फुरकान, बस अब एक लास्ट नेक्स्ट स्लाइड जो है कर लेते हैं, फिर देन प्रोबेबली वी कैन start again tomorrow. Now, this is the last thing regarding resilience that we have talked about so far. This is just a reflection, and you can just share your comments के आपको resilience जो है सिर्फ वर्क प्लेस पे चाहिए होती है, या और भी ऐसी कोई जगह है जहां आपको resilience चाहिए होगी? I think resilience तो मतलब प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के लिए जो है वो चाहिए होती है इंसान को। जी बिल्कुल, आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं? मेरा ख्याल है कि बाहर जिस तरह हम लोग जाते हैं और सोसाइटी के अंदर मूव करते हैं फॉर ग्रोसरी और अदर पर्पसेस, तो उसमें भी एज सच रिक्वायर्ड होती है। जी जी, मैडम सादिया। जी, रेजिडेंस ऑफ कोर्स सिर्फ वर्क प्लेस पे नहीं है, घर पे भी है, बिल्कुल दुरुस्त कहा बाकी में भी, क्योंकि जैसे आपने लॉसेस की बात की, आपने उनसे करना होता है, डे टू डे चैलेंजेस होते हैं, वो घर पे भी हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं, एंड एवरी वॉक ऑफ लाइफ। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो आई थिंक कि हमारा बेसिकली आज के जो ये रेजिलियंस का जितना पार्ट हमने कवर किया है, वो उसका मकसद भी ये था, ये रिकग्नाइज और एक तरह से उसको रिपीट करके इस चीज़ पे इंटरनलाइज करना कि रेजिलियंस जो है ना, वो उसकी रिक्वायरमेंट से वर्क प्लेस पे नहीं होती है। आपको ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ में, अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर, व्हेन यू लीड योर लाइफ, आपको रेजिलियंस रिक्वायर्ड होती है। एंड एट द एंड ऑफ ऑल सच सेशंस आई ऑलवेज शेयर विद द ट्रेनीज कि जब हम अपने बच्चों का ब्रॉटअप कर रहे होते हैं, सब पेरेंट्स अपने बच्चों को बेहतरीन एजुकेशन देना चाहते हैं, बेहतरीन एनवायरनमेंट देना चाहते हैं, बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन सम हाउ हमारे एज अ सोसाइटी विद द पैसेज ऑफ टाइम, हमने बच्चों को अपने लाइफ स्किल्स जो सिखाने में हम लोग पेरेंट्स अब उस तरह से नहीं कर पा रहे। उसकी एक वजह ये भी है कि ग्रोइंग टाइम्स के साथ चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा, अब स्ट्रेस वैसे ही बहुत बढ़ गया लाइफ के अंदर। तो इसलिए रेजिलियंस इज समथिंग कि आपने ये अपनी वर्क प्लेस के लिए सिर्फ नहीं करना, आपने अपनी टीम्स के लिए सिर्फ नहीं करना, आपने अपने बच्चों के लिए भी ये करना है। जब पेरेंट्स को बच्चे देखते हैं कि वो रेजिलियंट होते हैं, वो स्ट्रेस को अच्छा मैनेज करते हैं, और वो जो है दे शो स्ट्रेंथ मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, तो बच्चे ये आपसे अनकॉन्शियसली रेजिलियंस लर्न करते हैं। और बच्चों को ज़िंदगी में जहाँ एजुकेशन काम आएगी, जहाँ आपकी नेटवर्किंग काम आएगी, जहाँ आपकी तरबियत काम आएगी, वहाँ रेजिलियंस भी बहुत काम आएगी। बिकॉज ज़िंदगी किसी के लिए भी जो है वो बहुत स्मूथ सेलिंग नहीं होती है, उसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो ये हमेशा रेजिलियंस को इसलिए भी आप, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों ने आज पार्टिसिपेट नहीं किया,
लेकिन if they could take away one good thing from this discussion of 1.5 hours could be कि ये resilience जो है वो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, आपके work place के लिए, और most importantly आपकी family और बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है. तो आई एम श्योर कि इस पे आपके कोई कमेंट्स होंगे. कल हम इस डिस्कशन को एक लीडरशिप पर्सपेक्टिव से फिर लेके आगे चलेंगे. कुछ हम एक्सरसाइजेज और असाइनमेंट्स करेंगे. फुरकान, फिर हम what we'll do is कि tomorrow I will share their assignment with them so that they can do it probably tomorrow or day after. So thank you so very much. मुझे एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी है, वो ये है कि सैटरडे संडे चूंकि ऑफ होता है, बट वी विल बी हैविंग आवर ट्रेनिंग सेशन ऑन सैटरडे, बट संडे वुड बी ऑफ. तो वीक में हमारे पास थ्रू आउट द वीक सेशंस चलेंगे, बट संडे वुड बी ऑफ एंड like it will be 18th of April तक sessions चलेंगे. उसके बाद फिर we'll keep on informing you about the dates and timings, but just to inform you about one thing, वो ये कि Saturday को session होगा, Sunday को नहीं होगा, ठीक है? But we will be meeting you tomorrow at 3:30. The timing would be same, the place would be same, यहाँ तक आने का process would be same, और कल हम दोबारा से मुलाकात करते हैं नए कॉन्फ्रेंस के साथ, मोटिवेशन के साथ. थैंक यू सो वेरी मच. इट्स अ रैप फ्रॉम माय साइड. मैम, इफ यू हैव एनीथिंग टू से. सो थैंक यू. I wanted to say नई resilience के साथ. I'm sure that they can bounce back for tomorrow's training. Right. So with new resilience, we will be meeting tomorrow at 3:30 sharp. Thank you so very much.